कैसा रहा धोनी लोग? All fine ना? Let's go through the lines of chapter number 2 titled The Address from your Snapshot book. This story has been written by Marga Minko, who was actually a journalist as well as a story writer. About the story, it is all about a girl who goes to get her belongings at an address from where she returned back without taking anything. And why so? Let's go through the lines and find out. Actually, the story is divided into pre-war and post-war times. Going through the chapter, you will acknowledge, you will understand how war affects not only the physical side of any human but also its emotional one. So let's begin. The girl is standing at the door of the address which was given by her mother, and she is asking, "Do you still know me?" And that woman who had opened the door says, "No, I don't know you. I am Mrs. S's daughter." वो बच्ची जो कि अपना सामान लेने आई है उसी एड्रेस पर जो कि उसकी माँ ने उसे बताया था. स्टूडेंट्स, नोट दिस एड्रेस. दिस इज़ 46 मार्कनी स्ट्रीट. इस एड्रेस को याद रखिएगा, आंसर लिखने में काम आएगा. ये है 46 मार्कनी स्ट्रीट. तो वो उसको पहचानने से मना कर देती है. एंड शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolute no sign of recognition. She kept staring at me in silence. Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it is not her. I had seen her only once, fleetingly. And the girl, this narrator, began to think perhaps I have come to a wrong address. Means this is not the house where I should have gone. This is not the place, the address my mother has provided me, because actually she was also not knowing her by face. Once or twice she had seen her fleetingly. Fleetingly means going and coming in a hurry. कि 1-2 मिनट के लिए उनको भी लगा कि कहीं हम गलत एड्रेस पर तो नहीं आए हैं, क्योंकि वो भी उसको चेहरे से ठीक से नहीं पहचान पा रही थी. फ्लीटिंगली उसको 1-2 बार आते जाते देखी थी, और वो भी कब? बहुत साल पहले. It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. But the moment the door opened a little more, she noticed the cardigan that lady was wearing, and it was the same cardigan which was of her deceased mother. Due to regular washing, the buttons had become pale, means its color had set off. यानी पहले तो वो सोची कि शायद हम गलत जगह आए हैं, बट जैसे ही उसकी नज़र थोड़ा दरवाज़ा और खुला और उस लेडी के कार्डिगन पर पड़ी, वो श्योर हो गई कि नो, आई एम एट द राइट प्लेस, क्योंकि ये उसकी माँ का ही कार्डिगन पहनी हुई थी, और इतनी बार पहनते पहनते उसके बटन के कलर भी क्या हो चुके थे? फेड हो चुके थे. देन सी बिगैन द कन्वर्सेशन. वेल, यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड. हैव यू कम बैक? सेड द वुमन. लुक द कनिंगनेस ऑफ दैट लेडी. व्हेन द नरेटर इज सेइंग कि आप शायद मेरी माँ को जानती थी, इन ए क्वेश्चनिंग वे. Then she is saying, have you come back? Means she was under the impression, she believed that after the war, no one would come back, and perhaps all those belongings that were given by the narrator's mother to her will remain with her for time immemorial. यानी उसको आश्चर्य हुआ कि तुम वापस आ गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि इस वार के बाद कोई नहीं आएगा, और वो जो भी सामान उसकी माँ ने उसे दिया है रखने के लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा. आई रिग्रेट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. और स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती है कि माफ़ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ. मतलब आप समझ लीजिए जिसका सामान रखी है उसी को दरवाजे से ही
चाहती है कि वो वापस चली जाए, उसको इवन अंदर घर के अंदर एंटरटेन करना भी नहीं चाहती है। Then she said, I have come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another times. And how reluctant she was when she is saying, when the narrator is saying, कि I have come from a faraway place on a train and I want to talk to you for a moment. The lady is answering, no, no, it is not convenient for me today. I can't. Then the narrator spoke very straightforward. I can't see you another time. मतलब आज ही हमको बात करनी है, मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगी. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. तब फाइनली वो सिर हामी में हिलाती है और बहुत धीरे से दरवाज़ा खोल के ऐसे खोलती है जैसे दरवाजे की आवाज़ से किसी को घर में, जो भी घर के अंदर मेंबर्स हों, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said it was nothing. Perhaps she didn't see who was there, but she perceived that someone from the gallery, from the curtain behind, asked who had come and what she wanted, and she just answering nothing. यानी जब ये घर के अंदर जा रही थी तो शायद कोई पर्दे के पीछे से उनको घूर रहा था और उस लेडी को पूछा कि वो कौन है और क्यों आई है, क्या लेने आई है. तो इस लेडी ने सिर्फ मुंह से ये कहा, नथिंग. I looked at the nameplate again. Dawdling, it said in black letters on white enamel, and on the jamb a bit higher, the number 46. यही एड्रेस जो हम आपको बोले थे, नोट कर लीजिए. मैंने फिर से नेम प्लेट को देखा. डॉर्लिंग सरनेम, जैसे हम लोग कोई भी सरनेम लगाते हैं, किसको, मुंडा, झा, मिश्रा, सिंह, तो वैसे ही वो सरनेम क्या है, डॉर्लिंग. ब्लैक लेटर्स में वाइट पेंट के ऊपर लिखा हुआ था और क्वार्टर नंबर बोलो, बंगलो नंबर बोलो या फिर हाउस नंबर था 46. I walked slowly back to the station. I thought about my mother, who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. अब वो पूरी कहानी वो वापस आ गई है, उसी के बीच में आपको पता चलेगी. कहती हैं, जब मैं स्लोली स्टेशन की तरफ आ रही थी तो मुझे माँ की याद आई, जिसने मुझे ये एड्रेस दिया था बहुत साल पहले. और ये कब की बात है, फर्स्ट हाफ ऑफ द वार की शुरुआती दौर में. मैं घर पर थी कुछ दिनों के लिए. एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड एंड शी नोटिस्ड दैट द रूम्स हैड चेंज्ड. मीन्स various items of the house were missing. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Dawdling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. And mother was surprised at my noticing the things, that these things are not available in the house that were earlier present. And then she told me about this Mrs. Dawdling. I was not so much interested, but understood that perhaps she was my mother's acquaintance, जान पहचान की कोई है, whom she had not seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. यहाँ पर बहुत ध्यान से समझो इस लाइन को, कि पहले सिर्फ परिचय था और अचानक फिर से दोस्ती की और अपने कॉन्टैक्ट्स को रीन्यू कर लिया और उसके बाद लगातार आने लगी. यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा जो रेशियल जो डिफरेंसेस क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो किसी तरह का भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में. एक्चुअली जो मिसेस डॉडलिंग है वो नन जीव है और ये जो हैं नैरेटर और उनकी माँ, ये लोग थे जीव. तो उस टाइम में क्या हो रहा था, यहूदियों
को यातनाएं दी जाती थी, उनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता था। तो परहैप्स यू कैन अंडरस्टैंड हियर दैट जब उनको पता चला था कि अब ये लोग धीरे धीरे इनको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने क्या कर ली थी, अपनी दोस्ती रिन्यू कर ली थी और धीरे धीरे इनके सारे सामान को इंसिस्ट करके अपने घर में सेट कर लिया था। देख तो आगे लाइंस में समझ में आएगी बात। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a crick in her back from the crockery. और उनकी माँ, think about narrator's mother, how innocent she was. कहती है बेचारी जब भी आती है तो कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाती है। टेबल पर जितने भी सिल्वर के यूटेंसिल्स थे, यानी चांदी का जो भी सामान था, बर्तन हो, वो सारा एंटिक प्लेट्स हो जो कि वहाँ टंगा था वॉल पर, बेचारी सब ले गई। उनको तकलीफ़ भी हुई होगी उतने बड़े बड़े लार्ज वेजेस ले जाने में। और मुझे तो चिंता हो रही है कि शायद उसके पीठ में थोड़ी सी मोच ना आ गई हो। मतलब थिंक ऑफ दैट लेडी कि जो अपना सामान दे रही है, बल्कि वो ग्रेटफुल हो रही है कि मेरे सामान को वो सेफ कर रही है, उठा के अपने घर में ले जा रही है। माई मदर shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. ये लाइन भी मार्क करो। माँ क्या कह रही है, बेटी को क्या बताई थी कि मुझे तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई होती उसको ये करने के लिए कहने को कि तुम मेरे सामानों को सुरक्षित कर दो, अपने घर में रख दो। उसने खुद इंसिस्ट किया यानी उसने ही जिद किया कि तुम लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में साथ जाना पड़े तो इट इज़ बेटर कि अपना सारा सामान क्या करो, मेरे घर में रख दो। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, सी सेज। देखो वही लाइन जो भी बता रहे थे, उसने कहा कि मैं आपके सारे अच्छी चीज़ों को संभाल के रख देना चाहती हूँ। चूँकि तुम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कुछ भी खो जाए, तुम्हारा कुछ भी छूट जाए। तो लाओ मैं अपने घर ले जाके इन सबको सेव कर लेती हूँ। हैव यू अग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। नरेटर ने माँ से पूछा भी था कि हैव यू अग्रीड फॉर दैट, तुम मान गई इस बात के लिए। As if that is necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that and think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. माँ उल्टा इसी को डांट दी, नाराज़ हो गई कि अरे ये पूछना कोई ज़रूरी है क्या, ये तो इंसल्ट होगा कि बेचारी एक तो रिस्क लेके, मतलब एक नन जीव एक जीव के घर आ रहा है, उसके सामान को बैग और सूटकेस में भर के ले जा रहा है, तो वो उसके ऊपर दया दिखा रही है, पीटी कर रही है कि वो अपने लाइफ को रिस्क में डाल के हमारे सामान को सेव कर रही है। तो अगर मैं ऐसा पूछूंगी तो ये उसका इंसल्ट होगा। मतलब नैरेटर की माँ पूरी तरह से उसके प्रभाव में थी, पूरी तरह से उसको इन्फ्लुएंस की हुई थी कि यही बेटर है कि वो उसके सामानों को क्या कर दे, सुरक्षित कर दे। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. शी लुक्ड एट मी reprovingly एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. बट इस कन्वर्सेशन से नरेटर की माँ को ये समझ में आ गया था कि मुझे ये सारी बातें कन्विंसिंग नहीं लग रही है, यानी ये बिल्कुल नहीं फील हो रहा है कि वो बिल्कुल ही सेल्फलेस लेडी है, मिसेस डॉर्लिंग एक सेल्फलेस लेडी है, ये बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। तो मेरी माँ हमको एश्योर करते हुए मेरी तरफ एक ग्लांस डाली और फिर मैंने और माँ ने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things. On the way, I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. फिर उस दौरान जब वो स्टेशन जाते जाते ये पुरानी बातें याद कर रही है तो कहती हैं कि बहुत दिनों के बाद इस एरिया में आए थे, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा अटेंशन उन चीज़ों पर जो रास्ते में दिख रहे थे नहीं ले रही थी। फैमिलियर प्लेस होने के बाद भी, वार के बाद आने के बाद मुझे इसमें इंटरेस्ट लेने की कोई नेसेसिटी भी, कोई रीज़न भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ with the sight of streets and houses full of memories from a precious time.
सी इज़ गेटिंग इमोशनल कि आफ्टर द वॉर क्या होता है, एवरीथिंग गेट्स सैटर्ड, डिस्ट्रॉयड, बर्नड एंड प्रेजेंट्स अ वेरी पीटिएबल कंडीशन। तो वो जानबूझकर भी बाकी चीज़ों पर नज़र नहीं डालना चाहती थी कि वो उजरा वीरान सा शहर नहीं देखना चाहती थी जहाँ कभी उसकी अच्छी यादें हुआ करती थी। यानी वॉर के बाद वो सिर्फ अकेली सर्वाइवर है, घर के सारे मेंबर्स गुजर चुके हैं, तो उन रास्तों पर वो चल तो रही है लेकिन ये देखने की कोशिश नहीं कर रही है कि आसपास अब कैसा दिखता है, बिकॉज वो उसके पेन को और क्या कर देता, एग्रवेट कर देता। In the train back, I saw Mrs. Dodling in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. Again, the story is moving from present to the flashback, then again present and then to the flashback. फिर कहती है जैसे ही ट्रेन में बैठे, यानी उस घर से लौट रही है, रास्ते में जो भी सोचा हम लोगों ने अभी पढ़ा, फिर जैसे ही ट्रेन में बैठी है तो अचानक से फिर से मिसेस डॉडलिंग का चेहरा उसके सामने आ गया और याद आया क्या इस बार, कि पहली बार मैंने उसे कब देखा था। सुबह का टाइम था, मेरी मदर मुझे उनके बारे में बताई और उस दिन मैं लेट से उठी थी और जैसे ही सीढ़ियों से मैं नीचे आई, मतलब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग था और वो ऊपर वाले मंजिल से जब नीचे आई मैंने देखा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, ए वुमेन विथ ए ब्रॉड बैक। सिर्फ वो पीछे से देख पाई कि माँ उनको गेट तक छोड़ने जा रही थी, चौड़े पीठ वाली, मतलब उनका कंधा और पीठ चौड़ा सा दिखा कि एक ऐसी लेडी जा रही है। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, सी बेकॉन टू मी। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। सी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। माँ बोली भी, ये देखिए मेरी बेटी है, आवाज़ देते हुए। वो सिर्फ नॉड की मतलब सिर्फ हाँ में सिर हिला देना, और वो सूटकेस को उठा ली जो इस टाइम वो कैरी करके ले जा रही थी, और लंबा सा जो कोट पहनी थी उसके अंदर उसको छिपा के चल दी। और मुझे याद है उसने क्या पहन रखा था, एक ब्राउन कोट और एक शेपलेस हैट, मतलब किसी खास शेप के बिना जो हैट था, ऐसा एक हैट। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. The narrator asked her mother कि क्या वो बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं, because I noticed she was finding it difficult to carry those heavy suitcases. फिर से आप एड्रेस को ध्यान दीजिए, इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। एंड दैट वॉज द डे कि माँ ने नरेटर को वो एड्रेस बताया था कि ये सारा सामान कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा था ये सब कुछ? मार्कनी स्ट्रीट, नंबर 46, और माँ ने ये भी कहा था रिमेंबर दैट। Hope you all have understood up to the part we have done today. In the next video, we will meet with the remaining part. Thank you. See you in the next video.